कार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच दंडोत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरु के विचार आप सरवण कर रहे हो। गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए जितने भी जीव जंतुओं के नाम हैं उन्हां दी विचार अज तो आप सरवण करोगे। किहड़े किहड़े जीव जंतुओं के नाम गुरु ग्रंथ साहब दे विच आए हैं, क्यों आए हैं, उन्हां दे गुण करके अवगुण करके मनुख नूं समझाण वास्ते जो विचार गुरु ने साडी झोली विच पाई है। अज सब तो पहले जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कीड़ी का जिक्र किया है। कीड़ी दी विचार आप सरवण करोगे। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जपजी साहब के अंदर कीड़ी का जिक्र किया है। सतगुरां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जो बहुत निम्रता के मालक हैं, निरंकार ने भी आख्या भी 75% जो निम्रता है, जो गरीबी है, वो गुरु नानक लै गए हैं। बाकी सारे होर जो रहबर हैं उन्हां दे विच वंडी है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जिथे अत दी निम्रता रखते हैं महाराज, कदी भी अपना आप सतगुरां ने नहीं जनाया है। तो महाराज ने सब तो पहले जिस जीव का जिक्र किया है वो है कीड़ी। कीड़ी आपां आम घरां दे विच भी देख लैंदे हां। बहुत सारियां कीड़ियां घरां दे विच एक जगह तो दूसरी जगह ते जांदियां होईयां सानू दिखाई दे जांदियां ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जो जिक्र किया है कीड़ी का, सतगुरु कहंदे ने कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो न विसरै। जिस दे हिरदे दे विचों परमात्मा नहीं विसरदा है, जो परमात्मा नू याद करदा है, रब नू चेते करदा है, भावें वो छोटी जी कीड़ी क्यों ना होवे। महाराज कहंदे ने उस दे मुकाबले ते दूसरा होर कोई नहीं है। फिर इस तो जिहड़ी पहली पंक्ति है ना, आप उसनू पढ़ो। समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन।
ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਫੈਲਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਤਨ। ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀੜੀ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਤਨਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋਵੇ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਅਗਰ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੀੜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਸਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੌਂਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਚ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਪਹੀਨ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਤਨ ਰੂਪਹੀਨ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਪਿੰਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਬਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਇਨ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਣਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਈ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀੜੇ। ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਮਾਲ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੀੜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਔਰ 8 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਮ ਕੀੜੀ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ।
जैसे कीड़ी नाम है, पपीलका है, पपीलकह है, कीट नाम आया है, कीटी नाम आया है, कीट टैंका मुक्ता ये भी कीड़ी वास्ते शब्द आया है, कीरी शब्द आया है रारे दे नाल, कीरी, चींटी शब्द आया है। इस तरह करके तकरीबन कोई 8 ਦੇ करीब नाम आए ने ते 15 ਦੇ करीब पंक्तियां ਹਨ गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ, जिथे परमात्मा ਦੀ मिसाल देनी होवे कि ਉਹ रब ਜਿਹੜਾ है चीटी ते कुंजर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कल फूला। परमात्मा जो है वो कीड़ी तो लैके हाथी तक सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਕਲ ਮਾਟੀ ਕੁੰਜਰ ਕੀਟੀ ਪਾਂਜਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ ਕਟ कट राम समाना रे। वो परमेश्वर परमात्मा जो है ना, वो कीड़ी तो लैके हाथी तक उस सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ परमात्मा ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਉਹ परिपूर्ण परमात्मा किधरे किरपा कर देवे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, नीकी कीरी मह कल राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे। जे परमात्मा किधरे एक कीड़ी दे उत्ते भी किरपा कर देवे ना, तो पसम करे लश्कर कोट लाखे। करोड़ों का जिदा लश्कर होवे ना, उन्होंने भी पसम कर सकती है एक निक्की जी कीड़ी, जे किधरे रब दी परमात्मा दी किरपा हो जावे ते। कई लोकी अजकल पंक्तियां दे उत्ते किंतु परंतु करन लग पे हैं बहुत सारे। कई नहीं मनते भी इस तरह किवें हो सकता भी एक निक्की जी कीड़ी करोड़ां दा लश्कर सुआ कर देवे। यह प्रतख प्रमाण तुहाडे सामने है। कीड़ी ते बहुत वड्डा जीव है एक, वो तो सानू इन्हां अखां नाल नज़र भी आ जाती है, ਉਹਦੇ हथ पैर भी नज़र आ जाते हैं, मूँह नज़र आ जाता वे। कीड़ी नूं असीं देख सकते हैं इन्हां खुल्लियां अखां दे नाल। लेकिन इस वक्त जिहड़ा करोना वायरस चलदा पिया, जो इन्हां खुल्लियां अखां दे नाल नज़र नहीं आंदा, सानू असीं देख नहीं सकते हैं। माइक्रोस्कोप दे नाल उहनूं वेखना पैंदा है ते आखिर वो भी जीव है ना, है तो वायरस है, वो भी जिंदा है। अखां नाल असीं देख नहीं सकते हाँ। धरती दे 200 तो वध देशां नूं एक निक्के जे वायरस ने, जिस नूं असीं इन्हां अखां नाल वेख नहीं सकते हाँ, सारी दुनिया नूं उसने वक्त पाया होया है। सारी दुनिया नूं अज तक कदी ऐसा होया नहीं होना। रेलां बंद, बसां बंद, फ्लाइटां बंद, दफ्तर बंद, मनुख दा निकलना बाहर बंद। कीड़ी तो बड़ी वड्डी चीज़ है। ये वायरस तो बहुत छोटा है, पर सारी दुनिया नूं वक्त पाया होया उसने। किधरे परमात्मा अगर कीड़ी दे उत्ते किरपा कर देवे ना, तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, निक्की जी कीड़ी वड्डियां वड्डियां लश्करां नूं सुआ कर सकती है, अगर परमेश्वर जो है किरपा कर देवे। तो कीड़ी नूं छोटा या मामूली नहीं समझना चाहिए है, क्योंकि परमेश्वर तो लै परमेश्वर की जिहड़ी होंद है वो कीड़ी तो लैके हाथी तक, क्योंकि इस वक्त सब तो वड्डा जानवर हाथी है बस। तो यही मिसाल दी है भी सारियां दे विच वो परमेश्वर परमात्मा इक्को जिहा वसदा है। मैं पहले अर्ज की कि
ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੀੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਰ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੇ ਬਿਖਰੀ, ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੰਡ ਦਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਅਗਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਹੈ ਖਾਂਡ ਰੇਤ ਮੈਂ ਬਿਖਰੀ, ਹਾਥੀ ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭਲੀ ਬੁਝਾਈ, ਕੀਟੀ ਹੋਏ ਕੇ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਬਰੀਕ ਖੰਡ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਉ ਤਿਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਆਵੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਤਨਾ ਬਾਰੀਕ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਦਵੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀੜੀ ਬਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਕੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀੜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੋਂ ਨੀਚ ਸਦਾਵਣਾ, ਕੀੜੀ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪ ਗਿਣਾਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਇਕਤ ਖੱਡ ਸਹੰਸ ਸਮਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਕੀੜੀ ਇਕਤ ਖੱਡ ਸਹੰਸ ਸਮਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸ਼ੱਕਰ ਕੀ ਵਾਸ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰੀ ਤਿੱਥੇ ਚਲ ਜਾਏ।
किधरे घ्यो की खुशबू आ जाए, खंड दे शक्कर दे दाने की किधरे खुशबू आ जाए, फिर उसे वेले ही आप तुर पैंदी है। आप भी खांदी है तो दूजियां नूं भी खवांदी है। भाई गुरदास जी दियाँ होर भी बहुत सारिया इस तरह दियाँ पंक्तियां हैं। भाई साहब कहते ने, प्रथम ही चीटी के मिलाप को प्रताप देखो, सहज अनेक एक बिल में समावी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने, प्रेम की परिभाषा अगर सीखनी है तो कीड़ी कलों सीखो। प्रेम की भाषा अगर सीखनी है तो सहज अनेक एक बिल में समावी। सहज सौखे ढंग दे नाल एक निक्की जी खुड दे विच हज़ारां लखां कीड़ियां समा जांदियां ने, कदी उन्हां दे विच लड़ाई नहीं होंदी है, कदी भी नहीं। मैं डिस्कवरी ते देख रहा सा, वो दस रहे सन कि तमाम जीव जंतु सब आपस विच लड़ते ने, पर कीड़ियां आपस विच नहीं लड़दियां हैं, उन्हां विच लड़ाई नहीं है बिल्कुल, वो लड़दियां नहीं ने आपस में। एक छोटी जी खुड दे विच सारियां समा जांदियां ने, लड़ाई कोई नहीं उन्हां दे विच। ते भाई साहब कहते ने, इस कीड़ी कलो जीवन की जाच सीखनी चाहिए है। किहड़ी जाच सीखनी चाहिए है? तो भाई साहब कहते ने, अगर भागी पाछे एके मार्ग चलत जात, पावत मिठास बास तहीं मिलत आवई। एक अगे चलदी है तो बाकी सारियां उहदे पिछे चलदियां हैं। भाई साहब का एक कवित भी है, जैसे एक चीटी पाछे कोट चीटी चली जात, एक टक पग डग मग सावधान है। इक्को ही कीड़ी दे पिछे हज़ारां कीड़ियां तुर पैंदियां ने। भाई साहब कह रहे हैं, वो पिछों वालियां कीड़ियां कदी अगले नूं पुछदियां नहीं हैं कि तू कित्थे चली है, कित्थे लैके चली है, की मिलेगा की नहीं मिलेगा। जिहड़ी अगे चल पैंदी है ना, बाकी सब उहदे पिछे चल पैंदियां हैं। अपने आगू दा उन्होंने कदी विरोध नहीं किया है, अपने आगू दा चुप करके उहदे पिछे चल पैंदियां ने। लेकिन भाई साहब कहंदे ने कि एक मनुख ही है जिहड़ा अपने आगुआं दे पिछे नहीं चलता है। ये सारे जिहड़े कीड़ियां ने, कुंजां ने और हिरन ने, भाई साहब ने मिसालां दित्तियां ने। जे मैं सारा सवैया तुहानूं सरवण कराया ना तो फिर समा बहुत लग जाना इस। भाई साहब कहंदे ने, ये तमाम कीड़ियां जो हन ना अपने आगू दे पिछे चलदियां ने, लेकिन मनुख जिहड़ा है ना वो अपने आगू दे पिछे नहीं चलता है। मनुख जो है, कीड़ी कलों ये जाच सीखनी चाहिए है सानू। किधरे किसी कीड़ी नूं एक दाना अगर किधरे मिल जाए ना, शक्कर दा, घ्यो दा या किसी भी चीज़ दा मिल जाए, तो किसी कीड़ी नूं उसकी खुशबू आ जाए, पता है वो की करदी है? पहले जाके बाकियां नूं बुलांदी है, फिर आके सारियां दे नाल मिल के खांदी है। वो पहले बाकियां नूं बुला के लियाएगी। तुसी देखो घरां दे विच कोई चीज़ डुल जाए ना, डिग पवे कोई चीज़ खाण वाली, थोड़े ही समय दे विच, मिंटां दे विच उत्थे कीड़ियां दा ढेर लग जांदा वे। किवें आ जांदियां ने वो? एक नूं पता लगदा है, वो जाके बाकी सारियां नूं बुला के ले आउंदी है। एक नूं पता लगदा है बस। मनुख नूं कीड़ियां कलों सीखना चाहिए कि बाकियां नाल वंड के छके। गुरु नानक साहब दा उपदेश है ना, किरत करो, नाम जपो ते वंड छको। पर साडे कोल ये चीज़ नहीं है। सानू तो किधरे पता लग जाए ना, इस दुकान तो या इस जगह तो सानू कुछ लाभ मिलण वाला है, भरा भरा नू नहीं दसदा, भरा भरा कोलों भी छुपा के रखदा वे।
सारा कुछ मैं ही हड़प कर लवां, किसी दूजे नूं ना मिले। मिल के वंड के छकण दा उपदेश गुरु ने सानू दिता सी, पर अज साडे विच ये वादी जिहड़ी है, ये आदत जिहड़ी है, ये साडी दूर हो चुकी है। ये सुभाव साडा बदल चुका है। अज दा मनुख कहंदा भी मैं ही सब कुछ हड़प कर लवां बस। बल्कि असी तां किसी दूसरे दा थोड़ा जिहा सुख देख के भी खुश नहीं होंदे हां। अपने दुख तो बंदा इतना दुखी नहीं होंदा है। किसी दूजे नूं सुख तां इसने की देना सी, ये ते दूजे दा सुख वेख के भी सड़ बल जांदा वे। इनू सुख आखिर मिलिया क्यों है? ताई ते महाराज कहंदे ने, जिस दे अंदर होवे तात पराई, तिस दा कदे ना होवी भला। उहदा कदी भला हो ही नहीं सकदा है। जिहदे अंदर पराए बंदे नूं देख के अंदर साड़ा होवे, भरा भरा नूं देख के सड़ बल जाते हैं, खुश नहीं होंदे हैं। बड़े सुंदर बोल ने एक विद्वान दे। वो कहंदा, ये दिल भी क्या चीज़ है, एक पल में मचल जाता है। साडा ये दिल भी की चीज़ है, एक पल दे विच मचल जांदा वे। यह तो छलावा है, कई रंग बदल जाता है। एक एक मिनट दे विच एक कई रंग बदल जाता है। अपने गम का तो होता नहीं इसे गम इतना, गैर की खुशी अगर देखे तो जल जाता है। अपने गम का तो होता नहीं इसे गम इतना, गैर की खुशी अगर देखे तो जल जाता है। दूजियां दी खुशी देख के असी सड़ बल जाने आ। मदद तां असी किसी दी की करनी है? अज असी की मदद करनी है किसी दी? भाई साहब कहंदे ने, कीड़ी कलो सीखना चाहिए। जिन्हों किधरे खुशबू आ जाए किसी एक दाने की, होरनां नूं बुला के फिर आप मिल के खांदी है। बंदा कहंदा सब कुछ मैं ही हड़प कर लवां बस, सक्के भरा नूं भी नहीं दसदा है। फिर भाई साहब कहंदे ने कि इक्को ही खुड दे विच हज़ारां लखां कीड़ियां समा जांदियां हन। सानू कीड़ियां कलों प्रेम की भाषा सीखनी चाहिए है। असी देखते हैं दो भरा ने, मकान वखरे वखरे, दुकान वखरी वखरी, जमीन जायदाद सब वखरा वखरा, सारा कुछ अलग अलग है। पर दो भरावां दा इक्को ही छत दे तले खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। कीड़ियां लखां की तादाद विच इक्को ही खुड विच रह लैंदियां। दो भरा समझदार मनुख, 84 लाख जून भी सब तो उत्तम जून, दो भरा इक्को ही छत तले कट्टे नहीं रह सकते हैं। सीखना चाहिए कीड़ियां कोलों प्रेम की भाषा। थोड़े दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, उस विच खबर आई, छोटे जे जमीन के टुकड़े वास्ते दो भरा सन। उन्होंने जमीन का अपना बंटवारा किया। एक ने आख्या भी तू थोड़ी जी अपनी जिहड़ी दीवार है परे कर लै, तो मैनू थोड़ा जा खुला रस्ता मिल जाए। नहीं मन्निया उसने। पहले विवाद हो गया, विवाद तकरार तक पहुंचा। तकरार इतना वध गया कि उसने बंदूक चुक के सक्के भरा ने सक्के भरा दे दो बंदे मार दिते ने, छोटी जी जमीन के टुकड़े पिछे। कीड़ियां विच ऐसा नहीं है। सानू कीड़ियां कोलों सीखना चाहिए है। कल ही मैं अखबार विच पढ़ रहा था, 10 रुपये पिछे शराब दे पैसे मंगे, माँ कोलों नहीं दिते उसने, उन्हें चुक के लाठी मारी, माँ दे सिर विच उत्थे ही खत्म कर दिता। सानू सीखना चाहिए है। एकता साडे विच होनी चाहिए है। इकट्ठियां बहन की सानू जाच होनी चाहिए है। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने सारी कौम नू बल्कि सारी दुनिया नू जोड़न का यतन किया। बई एक ग्रंथ ते एक पंथ ते एक निशान साहब की छत्र छाया विच आ जाओ। अज तो साडे पता नहीं कितने टुकड़े टुकड़े होए पे ने।
मैं गुरुद्वारे विच भी देखदा वां, बेनती भी करदा होना भी कम से कम इत्थे तो इकट्ठे बह जाया करो ना। एक इत्थे बैठा हुंदा, एक परे बैठा है, एक वो कोने विच बैठा है, एक इधर लुक के बैठा होया, एक पिछे बैठा होया वे। असी गुरु घर दे विच भी इकट्ठे नहीं बह सकदे हां ते बाहर असी की करना वे। भाई साहब कहंदे ने कीड़ी कलों जाच सिखनी चाहिदी है। फिर कीड़ी का एक सुभाव होर बहुत वधिया है। जेड़ा दाना कीड़ी लैके अपनी खुड विच जांदी है ना, उत्थे रख के निश्चिंत हो के ते वापस आ जाती है, बिल्कुल निश्चिंत हो के। उन्होंने पूरा विश्वास है भी जद मैं वापस आवांगी ना, जदों मैं वापस आवांगी फिर मैनू जिहड़ी चीज़ मैं रख के गई हाँ ना, वो मैनू इत्थे ही पई हुई मिलेगी। जिहड़ी चीज़ मैं रख के गई हाँ, उन्होंने पूरा विश्वास है भी कोई इसनू छेड़ेगा नहीं। लेकिन मनुख दे विच ये विश्वास नहीं है। बंदे ने 2 मिनट वास्ते गड्डी भी खड़ी करनी होवे ना, उन्होंने भी जंदरा ला के लॉक करके रखदा हुंदा वे, उसनू भी लॉक कर देने। जे नहीं लॉक करेगा तो जब वापस आया तो गड्डी उत्थे नहीं मिलनी है। घरों दे विच असीं देखदे हां, असीं थोड़ा जिहा धन हुंदा है, 4-4 ताले ला के रखे ने, कुत्ते पाल रखे ने, गार्ड रखे हुए ने, CCTV कैमरे लाए हुए ने। इतना कुछ करन तो बाद भी मनुख दा मन हर वक्त तड़कदा रहिंदा है, किधरे चोर ना पै जान, लुट के ना लै जान, और लुट के लै जांदे ने लोग। मनुख दे विच ये विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कीड़ियां दे विच ये विश्वास है। वो जिहड़ी चीज़ रख के जांदे ना, उन्होंने विश्वास है मैं वापस आवां, ये मैनू इत्थे ही मिलेगी। मनुख दे अंदर विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। साडे तां गुरुद्वारे अगर असी पैरां दा जोड़ा जमा कराने ना, तो टोकन लैके जमा कराना पैंदा वे। जे वैसे ही रख दईए ना, तो समाप्ति तो बाद साडे तां जुत्तियां नहीं लभदियां उत्थे। बाकी चीज़ां दी असी की गल करनी है, उत्थे तां जुत्तियां नहीं लभदियां साडियां। कीड़ी दा एक सुभाव होर बहुत वधिया है। कीड़ी दीवार ते चढ़दी है, डिग पैंदी है, फिर चढ़दी है, फिर डिग पैंदी है। कीड़ी कदी हिम्मत नहीं हारदी है, चढ़दी है, डिगदी है, फिर चढ़दी है, फिर डिगदी है। एक समा आ जाता है कि वह अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है। वो कदी हिम्मत नहीं हारदी है। सानू कीड़ी कलों ये जाच सिखनी चाहिए है। कीड़ी कलों ठीक है, अज किसी कारण नितनेम टुट गया है, अगले दिन फिर कोशिश कर। लेट हो गया कोई गल नहीं, तू लेट ही कर, फिर कोशिश कर। रहत मर्यादा टुट गई है, अरदास कर सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच, महाराज सिर ते मेहर भरिया हथ रखो, मैनू हिम्मत बख्शो, फिर कोशिश करेगा तो फिर कामयाब होएगा। सत संगत छुट गया है, नियम टुट गया है, फिर कोशिश कर। असी तो एक दिन नितनेम ना होवे, अगले दिन कहना चल छड्ड परे, मेरे कोल हुंदा ही नहीं है, छोड़ दिओ इसनूं। गुरुद्वारे जाना होवे, एक दिन नहीं जा सके किसी कारण, चल छड्ड परे, फालतू दे काम ने, कौन जावे हुण। नहीं, रोज़ कोशिश करो, एक दिन सच्चे पातशाह की कृपा होएगी तो तुहाडी जिहड़ी मंजिल है ना, वो तुहानूं प्राप्त हो जाएगी। कीड़ी कलों ये जाच सीखनी चाहिए है। बहुत सारे गुण जिहड़े ने कीड़ी दे गुरु ग्रंथ साहब दे विच बयान कीते हैं, सारे तो मैं नहीं बयान कर सका। बाकी आप सारे ही समझदार हो, सच्चे पातशाह मेहर करन, कीड़ी दे जिहड़े गुण ने वो साडे अंदर आ जान, निमरता आ जावे। अभ्यास करिए रोज़ाना, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मत पे सुजान। रसरी आवत जात है, सिलपल परत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मत पे सुजान। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन, निमरता साडे अंदर आ जावे, ऐसी दात गुरु साडी झोली विच पावे। भुल्लां चुकां दी क्षमा, सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।